नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। न्यूज एजेंसी ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। यह तस्वीरें उस वीडियो के जारी होने के बाद सामने आई है जिनमें पीएलए के सैनिक गलवान में अपने इलाके में चीनी ध्वज फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं। अब भारतीय जवानों की तस्वीरों को गलवान में चीन के दुष्प्रचार के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिनमें एलएसी पर भारतीय सशस्त्र जवान तैनात नजर आ रहे हैं। और यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं रस्सा विशेषज्ञ उत्पल वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस की ओर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे उत्पल जी शुरुआत करना चाहेंगी कि पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर कहा जा रहा था कि चीनी सैनिक खड़े हैं, अपना राष्ट्रगान गा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में अब आखिरकार एक फोटो 2 तस्वीरें खास तौर पर सामने आई है जिनमें अब देखा जा रहा है कि भारतीय जवान जो है वो तिरंगा लहरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो हमारे कब्जे में ही है, यहाँ पर कोई चिंता का विषय नहीं है। जल्पा, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से गालवान घाटी और एंटायर ईस्टर्न सेक्टर के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस जगह पे जहां जिस तरह का द एंटायर लेंथ ऑफ 3488 किलोमीटर्स की जो हमारी एलएसी है, वहां जो भी कुछ हुआ है उसके पर हमने काफी चर्चाएं कर चुके हैं और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी दे हैव आल्सो गिवन देयर थॉट प्रोसेस ऑन दैट। नाउ in a situation like this, it is very clear that this is basically information warfare, psychological warfare, and absolutely spreading of lies by China. And this kind of game, the adversary, I will not call it enemy countries at this moment of time, but I will definitely go to the extent of saying adversarial countries like China and Pakistan. They are always up to the tricks. And their military intelligence agency or national intelligence agencies, in that there is always a dirty tricks department, and that dirty tricks department is besotted or has been tasked to run down the opposite the country. As a matter of fact, this kind of game that always goes on, and truly speaking, if not as a military personnel but as a citizen of the country, I would go to the extent of, telling our viewers through your channel that we should not, pay so much of heed to such kind of lies and information warfare that is going on from the Chinese side. Because China is basically, they are masters of their, in this game. And they hope like hell that, some kind of a muck will stick on the face of the other side. India is a mature country. Indian armed forces, they exactly know what they are doing, what they are capable of. And I don't think, that we have to get carried away. A country like India, has to get carried away by, this kind of a video. Because everyone knows that, what is the purpose of that video. And we know where we stand on the other part of the LAC. We also know where do they stand on their part of the LAC. And the ongoing talks are going on in various sectors, starting from, the Daulat Beg Oldie to Demchok to, Gogra to the Hot Spring to the Pangong So, and even in the Pangong So, the northern banks and the southern banks. There is, nobody should be on, in the doubt that we had surprised China and we had taken over the various, the mountain posts on the southern bank of the Pangong So. And China was absolutely baffled. And we had put the China on a defensive foot. So therefore, when the negotiation continued or got pursued, ultimately both the countries have decided to withdraw from the southern banks of the Pangong So. And that is how we have achieved, some kind of, progress in the talk. But China, what it is, it can never be relied upon, can never be trusted upon. And therefore, I have always maintained that you have to take, Chinese words, Chinese actions, very, very cautiously. Because you see, what needs to be highlighted is that China has, whether we like it or not,
China has achieved its strategic objective of dividing the India's, the concentration from one front to two or maybe two and a half fronts. And that is what they wanted to achieve. Similarly, the kind of massive economic effort that we have to put in to maintain our military preparedness and national defense preparedness on two fronts, that is on the LAC and on the LOC, that is on the western border, northwestern border, northern border, and eastern border. In a situation like this, when both China and Pakistan are distorted with pandemic, it also, China is, geopolitically, is also, entangled in Taiwan and South China Seas with countries like Vietnam and Philippines. China is also, got entangled, with a country like USA. And we have our own problems in our backyard where Afghanistan, the situation has developed. And Pakistan, in any case, is a client state of China. Therefore, what China's strategic objective has achieved is to make sure that the Pakistan's national security interests are not impinged by India. Whether we like it or not, we have to accept this fact. And we have to come out with our own national security strategy and national military strategy to offset Chinese, the momentary gains that has been achieved. Now, what is the other reality, the real situation, the reality, geopolitical reality on ground? China is a giant country with a nuclear, capability. We are a giant country in our own way, in a regional way, between China and Pakistan. Pakistan is also a nuclear capable country. Therefore, the situation that emerges, we have to tackle it with little bit of tact and at the same time a lot of firmness. And that is what is required. In this kind of geopolitical situation, when you are, when China is very cleverly also playing the other cards of Myanmar, Sri Lanka, Nepal, and Bhutan. So, and the kind of military hardware these being sold to these countries and the debt trap in which they are putting these countries, smaller countries, but they are there in our proximity, in our neighborhood. And if they start, playing China's tune at a time of reckoning, then there is a difficult situation. So, we don't have to get, unnecessarily perturbed by this kind of videos and a futile effort by China to provoke us or prick us. We have to behave in a very mature, manner, and we have to decide that, do we need to confront China or do we want to contain China? And we want to handle Pakistan. Because you cannot handle both. You cannot go in a confrontation path with a country like China and Pakistan. The big talk and bravado will not serve the purpose. If we have to do an honest analysis, we have to come down to Mother Earth. That at this moment of time, with this kind of economic situation, war does not suit either China or Pakistan. So China will continue to needle you. China will continue to needle you directly and indirectly through Pakistan and Afghanistan and using all these countries. Make no mistake about it. And they will continue to provide funding to China, moral support, military support, national support, whatever you can call it. You have to be prepared with it. And China will also use the Afghan card, which is our strategic backyard. And they will also create difficult situation for us in Daulat Beg Oldi and Damchok and in the vicinity of Doklam and Bhutan, where they have a little bit of tactical or an operational advantage at this moment of time. And China is not taking a word to withdraw, disengagement, or going back to the barracks. But see where we have made a mistake. Our strategic community made a mistake. We have willy-nilly on such kind of programs. The strategic community said China has no mountain warfare capability. Chinese troops are not trained for mountain warfare. We are much better. We have a mountain strike corps, and we willy-nilly, whether we like it or not, we gave lessons in military advice to Chinese warfare. And see what China is doing it. Every 3 months, China is rotating its troops. And they are making them, they are honing their skills, exposing them to the mountain warfare. And a large number of people, to the core level, they are preparing them in mountain warfare should the situation arise. And in otherwise, they've already built underground bunkers.
the missile sites, silos, they are dwelling units, they are building villages, and in a systematic manner they are going about it. So decide for yourself. You want to confront China? Then you will also get a bloody nose. They will also get a bloody nose. But will that solve the problem? No. It will not solve the problem. Then the futility of going to war or futility of going for a confrontation. So in my limited, humble opinion, what we should do is to contain China and tackle Pakistan and make sure that Pakistan does not grow out of its boots. And whilst containing China, like I have said in the past also, we have to meet China, or we have to face China soldier by soldier, missile by missile, tank by tank, aircraft by aircraft, ship by ship. We don't have to knuckle in our knees, and we don't have to chatter our teeth. We have to make sure, and we have to tell China that should you cross a certain limit, you will definitely get a bloody nose, and that will not be good, and you will not be able to get away with it. So whilst containing China on the LAC, tackle Pakistan firmly and let them not grow out of their boots. This should be in a larger way deal with this geostrategic or geopolitical scenario that is evolving or developing, and and we'll be facing that for maybe not in now, but in a foreseeable future. Because post winter, the real crux of the game will come out, and China is not letting its guard down just because it is snowing in the mountains. They are preparing their troops for mountain warfare should the situation arise, and so we are ready. We are in any case ready. Our armed forces are no less. Let me tell you that we'll be able to take on the threat of China. But the larger question that arises is that what do you want to do with China? You want to contain, you want to, or conflict, go into conflict with China. Be very, very sure and be very, very, measured in this approach. Because in this kind of situation with a country like China, bravado will not play out. And Pakistan, in any case, we know it is no country to be alarmed about, except the fact that it is a nuclear armed country. Therefore, we have to take them seriously. They are a professional forces. They are not, intifada or maybe what is happening in the Middle East region, where Israel the day they want, they can keep firing and keep pumping rockets on intifada and this kind of terrorist organizations. Pakistan is again a different game altogether. After all, whether we like it or not, they are a professional force. They will give a fight. But we have to be ready for it, and we are ready for that. So, in a larger way, this is a difficult scenario for India because economically it is draining us out. China has trapped us strategically, whether we like it or not. We are into it. We had no other option but to get into that trap, and they've ensured that Pakistan's POK, we are not in a situation where we can hurt Pakistan. By opening two fronts and active fronts, this is what they have achieved. जी बिल्कुल। ज्योति जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रश्न यही है कि एक वीडियो पहले सामने आया था जिसके बाद काफी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन फाइनली हम देखें तो न्यूज एजेंसी के सिक्योरिटी के हवाले से दो तस्वीर साझा की जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा था कि भारतीय जवान जो है वो अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। चल्पा जी, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जो पड़ोसी मिले हैं वो भाईचारे के बजाय दुश्मनी करने में ज़्यादा उनको रस है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है चाइना की, तो वो साइकोलॉजिकल मैं तो कहूँगी इसको, क्योंकि डायरेक्ट फाइट करने की कंडीशन में चाइना ने पिछली बार जब गलवान घाटी में इस तरह का प्रयोग किया था उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त भारत सपोर्ट में थी और उस वक्त खासी बदनामी भी हुई चीन की, और उसमें भी कोविड के बाद चाइना अभी पूरी दुनिया में एक तरह से विलेन जैसा बना हुआ है, तो वो अभी ये डायरेक्ट हमला करने का रिस्क नहीं ले सकता और इसीलिए इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है। बार बार मैं देख रही हूँ अरुणाचल प्रदेश में भी उसने मतलब जो अपनी लाइन है वहाँ के सरहद के पास गांव बना दिए हैं रेजिडेंशियल, ताकि अगर कभी युद्ध हो
तो वहाँ पे जान हानि हो तो वो शोर मचा सके यूनो के सामने या दुनिया के सामने कि भाई भारत ने हमारे रिहायशी हम इलाकों पर हमला किया है। और चूंकि वो एकदम बॉर्डर के नजदीक है, हम अपोज नहीं कर सकते। ऐसे ही उसने अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों का नाम भी बदल दिया है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं। तो इसका अर्थ बस एक ही होता है कि किसी तरह से, चूंकि हम डायरेक्ट युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो वो इस तरह से हमें व्यस्त रखेगा ताकि हमारा ध्यान अंदर अपने देश के विकास में न होकर उससे उलझने में रहे और हमारा पैसा भी वहां बर्बाद होता रहे। और हमारे तो दोनों तरफ ऐसे पड़ोसी हैं। तो पाकिस्तान की भी सेम यही पैटर्न थी। 2 बार वो युद्ध में मुंह की खा चुका था, इसलिए फिर उसने प्रॉक्सी वॉर आतंकवाद के रूप में शुरू की। और यही हुआ कि हमें अब अंदर भी, देश के अंदर भी इतने सारे सुरक्षा के उठाने पड़ते हैं कदम कि इसमें आम जनता की मतलब जिंदगी थोड़ी दूभर हो जाती है। हर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी, हर पोर्ट पे सिक्योरिटी। और चाइना बहुत लंबी दूरदर्शी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने हमारे आसपास जितने छोटे देश थे उन सबको कर्ज दे देकर उसने अपनी अंडर में कर लिया है एक तरफ से। अब आज ही मैंने पढ़ा था कि श्रीलंका की मतलब पूरी कर्ज जो है उसका, वो उसकी बजट से ज्यादा हो गया है। ऐसे ही मालदीव्स देखिए, म्यांमार देखिए, नेपाल देखिए। तो हमारी चारों तरफ एक तरफ से, और पाकिस्तान को भी उसने अभी लिया हुआ है, तो हमारी चारों तरफ बहुत स्ट्रेटेजिकली बढ़ रहा है। वो हमें अंदर घुमाने की कोशिश कर रहा है बीच में, ताकि हमसे वो डायरेक्ट नहीं उलझ सकता, लेकिन हम पे प्रेशर बनाए रख सकता है ताकि हमारा विकास अवरुद्ध हो जाए। जी जी जल्पा जी। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब वो चीन सैनिकों वाला वीडियो सामने आया था, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो के बाद में सोशल मीडिया पर लिखा था कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। और जिसके बाद आज देखा गया कि न्यूज एजेंसी ने सिक्योरिटी के हवाले से 2 तस्वीर भी साझा की। देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार अपना कार्य कर रही है, 2014 से जब से सरकार आई है तब से एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसमें ये सरकार काफी विफल रही है। 1947 से 2017 तक कहीं चीन से विवाद नहीं रहता है, मगर डोकलाम जैसा विवाद हो जाने के बाद पूरा जो हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर है, जो 3440 किलोमीटर तक का है, उसमें इन्होंने कहीं सारे बंकर्स बना दिए हैं, कहीं सारे रहायशी इलाकों में काफी सारी जो जगह है उसको कैप्चर किया हुआ है। और ये तो न्यूज एजेंसी बता रही है 60,000 ट्रूप्स जो उन्होंने अभी, वहां पैगोंग सरोवर है, वहां पैगोंग सरोवर पर 60,000 ट्रूप्स वहां आए हैं। और वहां पे कई सारी ब्रिजेस भी बने हुए हैं और रोड भी तैयार हुआ है। तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जो सिर्फ चुनावी प्रधानमंत्री बन गए हैं, जहां चुनाव आता है बस वहीं लग जाना है, देश का जो होना हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आप यूपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोरोना इतना सारा चल रहा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। कहीं आप गोवा जाएंगे, कहीं मणिपुर जाएंगे, मगर इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, कहीं अलग अलग बॉर्डर पर, इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो विवाद चल रहा है उस पर उनका कोई नजर नहीं है। और पूरी तरह से हमारी विदेश नीति हो चुकी है और हम लोग दिन बर दिन चाइना से इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। और जब शो जिनपिंग आए थे भारत के अंदर, तब हमारे अहमदाबाद के अंदर उनको झुला झुला कर उनका काफी खातिरदारी किया गया था, मगर आज उसका हमें कोई असर, उसका कोई ऐसा स्वरूप नहीं मिल रहा है जिससे चीन हमारी कुछ सुनता हो या चीन के साथ हमारी कुछ बनती हो। आज
फिर भी चीन अपनी हरकतें कर रहा है और ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार इस पर सीरियस मुद्दा जो है उस पर काम नहीं कर रही है और सरकार अपनी चुनावी रैली में व्यस्त है। राहुल जी का बहुत ही स्पष्ट बात है कि आप राजनीति के साथ साथ हमारा देश सबसे पहला है। आप पहले हमारे देश के जैसे भी एक्सटर्नल अफेयर्स के मुद्दे हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ मुद्दा अफगानिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, आप कम से कम उस मुद्दों पर जरूर पहले कुछ क्लियर करिए। और हम तो चाहते हैं कि सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और पार्लियामेंट के सेशन के अंदर इसका पूरा ब्यौरा दे और उसके बाद सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हम तो पूरी तरह सम्मत है कि सीधी तरह से इस चाइना को कैसे हमें हराना है, मगर उसके लिए ये सरकार की जो अपनी खुद की पॉलिसी है वो पॉलिसी अभी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। जी नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। पहले एक वीडियो सामने आता है चीनी सैनिकों वाला और फिर आखिरकार जवाब देना पड़ता है, एक सेना के तस्वीर साझा करनी पड़ती है। जलपा जी, ये पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है, पूरे देश के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। जी बिल्कुल। अगर भले ही चाइना आर्थिक रूप से बहुत ही भारी देश हो, जो पूरे दुनिया में हाहाकार मचा रहा हो, पूरी दुनिया का भले ही वो विलन बन चुका हो, लेकिन हमारे देश के सबसे करीब अगर वो है और उन्होंने हमारे डोकलाम के कुछ दूरी पर 4 गांव बसा लिए, अरुणाचल प्रदेश के आजू बाजू उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया, वो ब्रिज बना रहे हैं, एक तरफ 60,000 जितने सिपाही लगा रहे हैं, तो ये सब चीज दिखाती है कि वो कुछ साजिश कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज संसद में भी ये डिस्कशन में आया था कि भाई हमारे देश के अंदर चीनी घुसनखोरी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं से लोग अंदर आ रहे हैं, उनका एरिया ज्यादा हमारे में घुस रहे हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए। और चाइना के भारत एक बड़ा मार्केट है, चाइना के लिए भी पूरे विश्व में भारत एक बड़ा मार्केट सारे देशों के लिए है, लेकिन चाइना के लिए भी, क्योंकि 70% चाइना का मार्केट इंडिया में उनकी प्रोडक्ट सेल की जाती है, इसी वजह से भारत एक बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। तो चाइना के नजर में कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा कि ये देश में बड़ा मार्केट है, तो इसकी इकोनॉमी पे भी असर करने के लिए वो सोच रहा होगा। लेकिन इसके लिए हर बात में जो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बातों में भी बता देते हैं, वो इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी क्यों साधे हुए है, वो एक बड़ा विषय है। क्योंकि आज वो हर चीज में एक सिर की वजह में 100 सर काटने की बात करने वाले पीएम है, तो वो कुछ ना कुछ तो कड़ा रूप अपनाना चाहिए, क्योंकि वो फिर इतने आगे बढ़ जाएंगे हमारे पास तैयारी का समय नहीं रहेगा। हाँ, हालांकि हमारे सिपाही, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के जवान बहुत ही मजबूत है और उनके पास भी एक से एक बढ़कर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा है, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधियां रोकने की आ रही होगी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं चुप बैठे हैं, नहीं तो हमारे सिपाही कहीं चुप बैठे ऐसे नहीं है। जलपा जी। जी बिल्कुल। उत्पल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बात कर ही रहे हैं भारत और चीन के विवाद की, अगर चीन की तैयारियों की बात करें, उसके सामने भारत और हर एक हमारा सशस्त्र जवानों की अगर हम बात करें तो तैयारी में तो है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ऐसा लगता है कि शायद अभी थोड़ा एक्शन मोड में दिखना होगा। जल्पा, लेट मी, मुझे एक बात, बताना है आपका, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज नॉट ए सिंपल इश्यू बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो चाइना आज इतने महीनों से जो भी कुछ कर रहा है, आज के जमाने में विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड मास्टरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, with the satellite capability, we can monitor each and everything. Only thing we cannot monitor is that what is in their mind and what is their ultimate strategy, why they are doing it. We can make an analysis, which is called the strategic analysis, and based on that you can take countermeasures. But ultimately, there are also deceptions and there are also counter moves that that needs to be initiated.
So, whatever China has done, it is on the ground, and there is certain things which is below the ground. Now, look at the world situation, and make no mistake about it. That is more important. India-China bilateral scenario we can discuss little later. Why China is doing this kind of thing and increasing its activity of offensive nature? That we don't have to lose sight of. That is because China is fully aware that as far as Indian military might and economic might is concerned, it can, probably, initiate certain measures by which, they have a capacity to checkmate us. But with a certain amount of, the kind of damage that they have to incur. They cannot get away with it. They cannot change the center of gravity of, offense or offensive nature of, the conflict. That in case if it erupts. But that is not their idea. The idea is to keep the pot boiling. Their idea is not to go to war. Idea is to entrap you forever for next 5 years, 7 years, so that you cannot meddle around with his client state of Pakistan and Afghanistan and keep you draining economically, militarily, industrially, and make them dependent on them for their goods. Look at $100 billion is the kind of import that we are talking about at this moment of time, even between this kind of crisis. We are still, as of today, the Chinese import is touching $100 billion. So what does it indicate to you? And secondly, most importantly, if you have to take on China, you need the help of one of the superpowers. Either the America or maybe NATO countries or maybe Russia. And therefore, there is on a strategic canvas, you have to make certain counter moves. America is not what America was 5 years back. America itself is drained out by the Afghan war, and America does not want to go even into the fight with Ukraine, in Ukraine against Russia. But Russia is upping the ante. Russia's Putin, Mr. Putin is also a shrewd chess master. He knows that if he has to strike Ukraine, this is the time where America does not have that kind of wherewithal to openly go into, be helping Ukraine, after having extracted from Afghanistan. And Russia and China, make no mistake, I'm telling you, this is my, inside feeling, and I may be wrong, but someone can prove me wrong. I'm ready to stick my neck out. Russia and China, they are dancing on the same floor. Only they are not showing it to the world. But they are there to, damage the interests of America and the NATO countries. So that, they do not want to show it to the world. But they both are, inside, they are playing this, the tango with a beautiful, synchronization. And Mr. Putin is an ex-KGB director. He knows what he's doing. He's not just, one of those, routine Soviet leaders. Make no mistake about it. And therefore, I'm telling you that at this moment of time, if America, if a front is opened up, in any of the sector, America will have limited capability to help either the Quad or the AUKUS. And Russia and China, they exactly know the situation. So whilst the iron is hot, loha garam hai, thoda maar do. That is what the offensive language of Mr. Putin to the entire European Union, NATO countries and America. That either you take my notice or I'm going ahead in the Ukraine. So he is rattling it up, he is ratcheting it up, and in a very measured way. Similarly, China is, ratcheting up the Taiwan issue. The idea is to keep America and the NATO countries engaged so that they cannot come, in the South China Sea and the Pacific region, Indo-Pacific region. And when they have limited, the reach in the Indo-Pacific region of America and the NATO countries, AUKUS and the, and the Quad, the China is, of course, going to reign supreme. And let's be realistic about it. India alone, if we have to checkmate China in a totally, in a outright, conflict, we have limited capacity. We need, the external help. There is no doubt in this. And if that is not forthcoming, and if US is not ready to openly side with India, it would be a little difficult on the Indian politico-military leadership to take on China unilaterally. Even in 71 war, Mrs. Gandhi had done her homework in a very, very clear manner. And she had not only gone to White House, but she had taken the promise from, the Soviet leaders
that should something go around in a wrong manner, or if it's a messy situation, the USSR, then USSR, will come and help India out. So, I mean, these are the reality of life. And why China did not open up the front with India in 1971 war? Because Russia told, the Chinese leaders, don't cross the limit. Otherwise, we'll open a front in Mongolia. And we'll have to go to war with you. So China kept quiet at that moment of time. And in the Indian Ocean, in the Bay of Bengal, the Seventh Fleet was checkmated by the Russian nuclear submarines. So you need the superpowers' help if you have to take on China, a country like China. Make no mistake, ये कोई छोटी बात नहीं है जलपा. This is, we don't have to get emotional about it. In a military strategy, on a strategic canvas, you have to be real. And therefore, I'm measuring my word. And I'm saying that the geopolitical and geostrategic situation of the world is very, very different. And in this, the different scenario, when Ukraine, when Taiwan, when Hong Kong, when Iran situation, nuclear accord, and Iran and Turkey is also sitting in the lap of China and Russia. So, it's a very difficult cocktail which is, being made by, the various bartenders. And you have to be very shrewd geopolitically and geostrategically. Emotions will not play, any role in this kind of scenario. Therefore, we have to wait and watch. And at this moment of time, the fundamental and primary aim of India should be to be economically strong. The war does not suit us. The confrontation does not suit us at this moment of time. Therefore, contain China, be firm with Pakistan and Afghanistan, improve your economy, improve your industrial might, improve your comprehensive national strength, and that will give a pivot to the military might, and then deal with China accordingly, maybe in future years. That is my recommendation. जी बिल्कुल. ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूँगी. यहाँ पर जब चर्चा का विषय हुआ ही है भारत चीन, तो हम तो जानते हैं कि व्यापार के ही अभी लेटेस्ट में जो अंक आए थे वो सब कुछ स्पष्ट कर दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि शायद हमें उस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर जिन्हें हम दुश्मन कहा करते हैं अदर कंट्री जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि चलो हम उनसे लड़ने भी पहुंच जाए या लड़ भी ले, लेकिन फिर सिचुएशन क्या आएगी? जलपल, लड़ाई का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता है. दुनिया में कभी युद्ध का कोई समाधान हुआ ही नहीं है. बात यही है कि अगर आपको महासत्ता बनना है या दुनिया में अपना वर्चस्व थोड़ा बहुत रखना है, तो पहले पैसे होना जरूरी है, आर्थिक ताकत होनी बहुत जरूरी है. चाइना का देखिए, उसने बहुत लॉन्ग स्ट्रेटेजी से काम शुरू किया है 15-17 वर्ष पहले से. पहले चीन साम्यवादी था, इसलिए मतलब उसकी किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी एक तो साम्यवादी जो सिस्टम है उसका और सब ज़्यादा जनसंख्या का ये फायदा उठाया कि दुनिया भर के बाजारों में सस्ती चीज़ें सप्लाई करके उसने बाजार पर हक जमा लिया है. सब जगह से फैक्ट्रीज धीरे धीरे सब चाइना में शिफ्ट हो गई, सारी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां भी, क्योंकि जब लेबर सस्ता होता है तब कोई भी इंडस्ट्री वहां अट्रैक्ट होती है. तो उसने इस बात का बहुत फायदा उठाया है, क्योंकि लेबर भी सस्ता है, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है और वहाँ साम्यवादी सिस्टम है, तो कोई चू या चा नहीं कर सकता, हड़ताल नहीं होती वगैरह वगैरह. तो ये चीज सब इंडस्ट्रीज को बहुत माफी करने वाली चीजें थी. तो ये बहुत लॉन्ग स्ट्रेटेजी से चला है, तो वो धीरे धीरे उसने दुनिया को इस तरह से डिपेंड कर दिया है कि आप चाहो या ना चाहो चीन से सामान आपको खरीदना ही पड़ता है. और इस वजह से उसको दो फायदे हुए, उसके लोगों को रोजगारी तो मिली और साथ में उसकी खुद की भी आर्थिक ताकत इतनी बढ़ गई कि अब वो अमेरिका को भी सीधा सीधा बोल सकता है कि भाई हमारे मामले में अब टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होगा. तो ये उसने बता ही दिया है कि अब जब यूएसएसआर नहीं था तब से बीच में एक गैप पड़ी हुई थी, वो अब चीन अमेरिका के बराबर सामने खड़ा हो चुका है.
तो अब महासत्ता बन चुका है और वो बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है, तो उससे युद्ध करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मर्यादाएं स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतने, हमारी चाहे ट्रूप्स कितने भी कैपेबल हो, लेकिन उनके पास संख्या भी ज्यादा है, मशीनें युद्ध की भी ज्यादा है। और दूसरी चीज है कि वो अभी भी उसके जो नेता है तो वो इस बात में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि किस तरह से हम मिलिट्रिकल सुविधाएं और उसके सुरक्षा के साधनों में और ज्यादा एडवांस हो सके। तो ये सब चीजें हमारे खिलाफ जाती है, उसको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए सीधा युद्ध मुमकिन नहीं है, ना हमारी तरफ से ना चीन की तरफ से, क्योंकि चीन को भी अपनी मर्यादाएं पता है, वो भी हमारा मार्केट खोना नहीं चाहेगा या दुनिया में और अभी वो ज्यादा जी बदनामी सहन नहीं कर सकता। लेकिन तकलीफ यही है कि वो इस तरह से हमें बिजी रख के हमें दोनों तरफ से सुरक्षा के खर्चे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम बेखौफ भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो क्या करे वो पता नहीं है। क्योंकि देखिए, युद्ध मशीनों से बाद में पहले दिमाग में लड़े जाते हैं, तो उनके दिमाग में अभी क्या स्ट्रेटेजी है वो पता नहीं, होगी तो बहुत लॉन्ग टर्म की होगी, जिसका इफेक्ट अभी नहीं 4-5 साल बाद दिखे शायद। तो हमें उन लेवल पे जान के समझना पड़ेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से नक्शों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, गांव बसा रहा है और नाम बदल रहा है, तो ये भी उसकी स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है। ये जी हमें बिल्कुल। समझना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर लौटना चाहूंगी अभिषेक जी। यहाँ पर जब प्रश्न हम कर रहे हैं भारत और चीन के विवाद की, तब मुद्दा ये भी आता है कि हमें भी समय के साथ कितना अपडेट होना पड़ेगा, चाहे वो हम सशस्त्र की बात करें, या तो फिर चाहे हम पॉलिसी की बात करें, या तो फिर चाहे हम बात कर ले कि किस तरीके का रोड मैप हो। क्योंकि चीन का, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रोड मैप बड़ा क्लियर था कि पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद हमारा टाइम आएगा जब हम किसी को भी आंख दिखा पाएंगे, क्योंकि खुद हम हमारे पैरों पे खड़े होंगे। अब जब तक भारत की बात है, चलो हमारे जवान तो है जो लड़ाई कर लेंगे, लेकिन देश की इकोनॉमी का क्या, अर्थव्यवस्था का क्या? ये जलपा जी बहुत ही स्पष्ट है कि चाइना ने बहुत ही पहले से ये सब प्लान बना दिया था, और अभी हम जो हमारी सरकार है, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको जो प्लान है उसको कैसे विफल करे। खासकर अभी हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा साथ ही में आया हुआ है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और साथ में हमें जिस प्रकार से चाइना भी अभी अपनी जो हरकतें कर रहा है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, और हमारा जो इकोनॉमिकल सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं वीक ना हो जाए, और जो हमारा जो सशस्त्र जो होना चाहिए, उसका जो बल है, वो बल भी उस प्रकार से हमें अच्छा रहे, तो इस पर हमें काम करना चाहिए। और अभी जो उत्पल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने अपने बात के अंदर, that India should concentrate on economy and also side by side also tackle these troops, tackle the situation and duly arrange the situation in such a way that in future after this issue go ahead, we had to be financially strong, and that also we also had to be strong in the border areas also, and we had to be strong by defensive manner and externally, and in that case we had to first strong on economic manner. जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, और हम तो चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार से अपना जो काम कार्य करे, तो कि हमारे ट्रूप्स हैं उनका भी हमें बल बढ़ाना है, ट्रूप्स को भी इंक्रीज करना है, दिन ब दिन उनके खर्चे हमारे बढ़ने वाले हैं, तो हमें इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना है, और साथ ही साथ में हमारे जो ट्रूप्स हैं उसको भी हम कैसे साउंड करें, इस पर हमें काम करना है। तो हम तो सरकार से विनती करते हैं कि किस प्रकार से इस जो पूरा जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, खास करके पिछले 7-8 साल से जिस प्रकार से चीन हरकत कर रहा है, पूरे विश्व को जैसे वो डंडा पिटोर रहा है कि वी आर ओनली द सुपर पावर, और हमें
हमें प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे हमारी बात हुई है कि हमारी चारों ओर इस प्रकार के हमें नेबर्स मिले हैं, हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस छोटी मोटी रहती है। तो जो नितिन जी ने बात कही है उससे मैं बहुत ही सहमत हूँ कि सरकार कुछ भी करे, हमें इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग करे, और जो विवाद अभी हुआ है तो विवाद को पूरी तरह से जल्द सुलझाए, क्योंकि ये जो पूरा दिख रहा है या आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके मिलिटेंट्स पहुंच गए हैं, जिस प्रकार से रोड बने हुए हैं, जिस प्रकार से पुल बने हुए हैं, तो उसको किस तरह से अंकुश में लाए और किस प्रकार से ऐसे विवाद को अभी जिस प्रकार से चीन अपनी हरकतें कर रहा है उसको हरकतों से रोके, और हम जहां पे भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी हम सरकार के उस अंग में बैठे हैं कि जब देश की बात आएगी तो हमेशा हमारा जी। पूरा सपोर्ट देश के हर नागरिक, हर जो सुरक्षा बल है उसके साथ हमारा रहेगा। जी बिल्कुल। नितिन जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर हम चाइना की बात कर रहे हैं, उसकी ताकत क्या रही या उसके प्लस पॉइंट क्या रहे, अगर उसकी चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेसिकली आ जाता है कि उसने कैसे अपने आप को स्वरोजगार बनाया। चलो नकल करके हम बोलते हैं कि बनाते हैं, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत है, यानी प्रशिक्षण वहाँ पर किस तरीके का होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हमें ध्यान देना है, इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, आगे आने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिक सबसे पहले तो शिक्षण में सुधार से हमें ये चीज की शुरुआत करनी होगी। जल्पा जी, जिस तरह से चाइना ने अपने आप को जिस तरह से एक लेवल पे लेके आया है, क्योंकि वहां मैन पावर है, उन्होंने जो चीज इतने कम प्राइस में बना के पूरे दुनिया में बांटी है। अभी ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना है, हर दूसरा यूजर वर्ल्ड में चाइना की यूज करता है चीज। अभी आपको मैं चाइना का जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसा है कि चाइना ने हमारे चारों तरफ जितने कंट्री है, जैसे मालदीव है तो उसको 23,000 करोड़ का कर्जा दिया है, श्रीलंका है उसको 54,000 करोड़ 54,000 करोड़ का कर्जा चाइना ने दिया है, पाकिस्तान को 37,000 करोड़ का कर्जा दिया है, यूरोप के काफी कंट्रीज को, जिसमें लिथुआनिया करके एक कंट्रीज है जिसको उसकी 60 कंपनी ले लिए। तो मतलब चाइना खाली सैन्य से मतलब उसकी लश्करी ताकत नहीं, उसकी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग कर रहा है कि पहले उसकी जो वस्तुएं है उसकी आदत देश को लगाता है, फिर उसको कर्जा देता है। तो ये हुई चाइना की बात। लेकिन उसके सामने अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया के पास स्किल है। हम ये कर सकते हैं कि चाइना की काफी चीजें हम बैन करके हमारे यहां भी अगर प्रोडक्शन होता है तो चाइना को बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम हमारे पे चाइना ज्यादा परेशान करने की कोशिश इसीलिए इंडिया को नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। दूसरा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी है, वो चाइना को पता है कि ये इकोनॉमी से चाइना को भी काफी प्रोडक्शन मिलता है। हाँ, हमें इंडिया को अमेरिका, रूस, इजराइल वगैरह से अच्छी दोस्ती और तालमेल करके रखने से भारत देश को फायदा है, क्योंकि चीन घबराता है। चीन को भी कोई ऐसा मजबूत इकोनॉमी अर्थतंत्र वाला देश चाहिए उसके सपोर्ट में। इसलिए भारत को दो फायदे हैं, या अमेरिका लेना चाहता है उसकी तरफ, या चाइना भी लेना चाहता है इंडिया को उसकी तरफ। तो ये एक फायदा है। तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो सुरक्षा कर्मी है या देश के जो सरकार है उसको भी ये अगर पता ही होगा, लेकिन ये ध्यान में रखे तो वो काफी अच्छा है। जल्पा जी। जी बिल्कुल। उत्पल जी आपकी और जी उत्पल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जस्ट सिर्फ वेरी मॉडेस्टली और हम्बली मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि व्हेन वी कंपेयर इंडियन इकोनॉमी विद चाइनीज इकोनॉमी, एज ऑफ टुडे चाइनीज इकोनॉमी इज 19 to 20 trillion dollars and they are knocking the doors of America to displace them from the #1 economy of the world, and we are just struggling at 2.2 to 2.5 trillion dollars. Where is the comparison? Therefore, in a way, let me be very honest with you, Jalpa, that what on the Honorable Prime Minister of the country, what he is, set the record, saying that let us emerge as a $5 trillion economy by 2024 is an absolute must. He is on a right track, and it is the duty of every citizen of the country to strive for that and make sure that India, to begin with, becomes a $5 trillion economy. Then we will be at least, looked at.
With $2.2 trillion economy, you are trying to take on an economy which is 19 to 20 trillion dollar. And in by 2024, if everything, I mean, God forbid it doesn't happen, because I'm Indian. I would not like China to go into that place. But by all, published record, it is said that China will touch 24 to 25 trillion dollar economy in the end, and it will displace America. That is why America is, chattering, and America is worried. So, let's be real. Bravado and, unnecessary, wrong projection will take also the country in a wrong direction. It is our duty to also give a right figure and a right information to our, the citizen of the country. I mean, yes, there is no doubt. Given an order and everything, we will definitely, go ahead with it. But let's make no mistake. In today's geostrategic scenario, what matters is economic strength. And therefore, please put in every effort. And do you know what happened? Let me just, take 30 seconds to 1 minute. The Chinese specialists were planted all over the world. And they were the greatest scientists, researchers and all that. They penetrated the best of the institutions of the world. They learned everything. And then they did not take the citizenship of the America and London and, and the Paris, and they stayed back. They all came back to work for their motherland, and that was China. And what our IIT graduates are doing? What we call it a brain drain. They all are, graduating for the dollars, they're settling down there, and what have they done for their motherland? When we say that every Indian is an American, a CEO in an American company, it is not his duty to come back and work for his motherland. That is what is required. That kind of motivation is needed. If you have achieved that kind of status in NASA and, in Silicon Valley and various other companies of the world, where is your motherland gone? Come and start working. China worked on a reverse engineering. This word is reverse engineering for 15 years, and they swallowed their ego. And now they are showing their might to the world. So, faltu ki, that realism, it does not pay off. Let's first, emerge in a absolute terms. If we want to be a country to be reckoned with in a world canvas. जी बिल्कुल, आपकी और ज्योति जी आना चाहूंगी यहाँ पर। उत्पल जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर देश को ऊपर लेके जाना है तो सबसे पहले तो सबको एक डायरेक्शन में चलना होगा, एक मास्टर प्लान भी तैयार होना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ में सुधार की आवश्यकता होती है या फिर उस तरीके का कोई भी बिल लाया जाता है, फिर या फिर पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, तब कहीं ना कहीं आक्षेप प्रति आक्षेप दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात नहीं होती कि चलो सब मिलकर चर्चा करते हैं कि इस पर क्या हो सकता है या फिर कहाँ खामी रह गई तो चलो सुधार लाते हैं। लेकिन होता यह है कि शायद किसी जगह पे हम एक कदम आगे उठाते हैं, लेकिन फिर वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, या तो हम आगे बढ़ नहीं पाते या तो फिर कदम पीछे उठाना पड़ता है। हाँ जल्पा, इसमें अगर आप देखो कि चीन की जो महासत्ता बनने की शुरुआत हुई तो उसकी जड़ में प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति है। जो वहाँ के सर्वोपरि नेता है उनके दिमाग में ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय था कि हमें अपने देश को महासत्ता बनाना है। तो पहले राजकीय इच्छा शक्ति दृढ़ हो, वहां से शुरुआत होती है। तो उस वक्त फिर वो पर्सनल लेवल पे नहीं होते हैं, या तो बस यहाँ फर्क आ जाता है हमारे में और उनमें कि एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति नहीं बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेतागिरी है, राजकीय नेतागिरी, वो अपने पर्सनल लेवल से ऊपर उठते ही नहीं, देश की कोई सोचता ही नहीं। तो जब अगर देश के हित में कोई कदम बढ़ाया जाए तो देशवासी भी मूर्ख नहीं होते हैं कि वो ना समझे। जब भी हमने हमारे देश की सरकार ने जब देश की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है, हर नागरिक ने सपोर्ट किया है। तो नागरिक नहीं समझे ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति की जरूरत है। चीन की भी शुरुआत वहीं से हुई थी और इसीलिए उन्होंने बहुत लंबा प्लान बनाया। अब दूसरा भी मुझे अभी एक मुद्दा दिमाग में आया है कि अगर किसी ने गौर किया हो तो चीन अभी जिस तरह से
सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिकली, तो उसमें वो क्या कर रहा है, हर तरह के पोर्ट अपने कंट्रोल में रह रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, हर जगह पोर्ट अपने कब्जे में ले रहा है। तो वो, मुझे उसकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी लग रही है, वो पूरी आर्थिक ताकत से ही हर जगह वो खुद लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन वो आर्थिक कर्जों में इस तरह से देशों को डुबा देगा कि वो हर देश उसकी मुट्ठी में रहेगा। तो जिस तरह बहुत पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, तो कहा जाता था कि उसके राज में क्या किया था, ब्रिटिश भी धंधा करने के नाम पे ही हर जगह गए थे और उन्होंने हर देशों पे कब्जा किया था। सेम स्ट्रेटेजी अभी चीन भी अपना रहा है, वो व्यापार के नाम पे हर देश में एंट्री ले रहा है, और जहां पर राजकीय नेतागिरी उसका प्लान समझने में असफल रही, वहां के सारे उद्योग धंधे चीन चले गए, और इसीलिए अमेरिका की भी इकोनॉमी डाउन होने की एक वजह ये भी है। अगर उनकी सरकार थोड़ा सा ये बात समझ लेती और उद्योगों को अपने यहाँ रोक लेती किसी तरह से, तो फिर ये नौबत नहीं आती। ऐसे ही हमको इस बात से समझ के हमारे देश में वो अप्लाई करना है कि अभी हम भी देख रहे हैं कि सस्ते की लालच में हमारे यहाँ भी काफी सारी चीजें वहीं बन रही है, जॉब वर्क हो रहा है, या रिटेल सेलर से वो वहां से शिपमेंट मंगवाते हैं। तो ये सस्ते की जो लालच है, ये हमें लॉन्ग टर्म पर बहुत महंगी पड़ेगी, जब हम चीन के पर बहुत हर चीज के लिए डिपेंड हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर होना तो जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अनुकूल माहौल हमारे देश में रहे, ये भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए वो एक अनुकूल माहौल देने के लिए ये जो अपने यहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये जो मतलब भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम है, तो वो पूरा खत्म करना पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन है जब कोई भी राजकीय पक्ष ये भ्रष्टाचार से मिलने वाले फंड को ना छोड़ के जब देश के बारे में सोचे। तो अपने यहाँ जो ये भ्रष्टाचार है, ये जड़ है, और वहां पर जो है भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हर लेवल पे नहीं है। अमेरिका की तरह बहुत उपले लेवल पर होता है, तो आम जनता को इतनी दिक्कत नहीं होती है कि आप किसी भी ऑफिस में सही काम के लिए जाओ तब भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो अनुकूल माहौल नहीं मिलता है, इसी वजह से इंडस्ट्रीज वहां चली जाती है, क्योंकि आखिर बिजनेस क्या है, कंपटीशन है सस्ते दामों में चीज बेचने का। तो सस्ते दामों में कोई भी कंपनी तभी बना सकती है या बेच सकती है जब टैक्सेस कम हो, खर्चे कम हो। तो खर्चों में ये भ्रष्टाचार के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं वो भी आ जाते हैं। जी। तो ये बात समझ के हर देश की राजनीति अगर नहीं समझे नेता, तो ये देर सवेर अमेरिका या यूरोप या सबकी एक सी हालत होने वाली है। ये चीन के लंबे प्लानों को समझना पड़ेगा, और हमारे देश को तो बहुत जल्दी जागने की जरूरत है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास तो लेबर का प्रॉब्लम है नहीं, हमारे पास काफी जनसंख्या है, उसमें भी सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में है। तो वर्कमैनशिप की कमी तो नहीं पड़ेगी, बस जरूरत यही है कि माहौल ऐसा बने कि हमारे युवा जो जैसे उत्पल जी ने किया, मैं भी चिंतित हूँ ब्रेन ड्रेन से, तो उनको यहाँ अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा है। क्योंकि हर बात वही है कि इंटरनल पॉलिटिक्स, जब आपको टैलेंट से ज्यादा जो मतलब खुशामद कर सके उसको महत्व दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो हमारे कल्चर में आ चुकी है उसको दूर करना पड़ेगा। और ये एक प्रबल राजकीय शक्ति के अलावा नहीं, क्योंकि नेता वो होता है जो जनता को गाइड करता है। हमारे जनता गाइड हुई थी जब गांधी जी जैसे नेता मिले थे, तब उन्होंने जो नामुमकिन लगती थी अंग्रेजों से मतलब आजादी पाना, वो मुमकिन हुआ था। लेकिन कब, जब वो एक प्रबल नेता बने थे। तो बस जनता पीछे चलने को तैयार है, जरूरत एक प्रबल नेतागिरी की। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा यही था कि जिस तरीके से पहले चीनी सैनिकों का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन आखिरकार जब न्यूज एजेंसी ने सिक्योरिटी के हवाले से 2 तस्वीर साझा की जिसमें हमारे देश के जवान नजर आए तिरंगा लहराते हुए। अब मुद्दा यहाँ से नहीं होता, चीन का तो ये दुष्प्रचार ही था, लेकिन वो कहना क्या चाहता है, ये संदेश किस चीज का था। भारत और चीन का विवाद ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, काफी समय से हम ये देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या होगा। हमें पॉलिसी तो
और भी मजबूत बनानी होगी, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें छोटी नहीं लेकिन दूर की सोचनी है। यहाँ पर मुद्दा ये भी हुआ कि हमारी इकोनॉमी का क्या। आत्मनिर्भर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शब्द से काम नहीं चलेगा। उसके पीछे का रोड मैप क्या, और क्यों ना इस शब्द के लिए या फिर इसके रोड मैप के लिए सारे ही राज्य एकजुट नजर आए, सारी ही पार्टियां एकजुट नजर आए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर लोग तो कहीं ना कहीं डिवाइडेड ही रहेंगे। क्यों हम इकोनॉमी के मद्देनजर एक नहीं हो सकते, या फिर ऐसी कोई पॉलिसी या फिर ऐसी कोई दूर की प्लानिंग नहीं बना पाते? क्या हमें पता है कि हमारा विजन क्या है? अगर कोई नागरिक है, क्या उन्हें पता है? उन्हें शायद ये पता होगा कि हमारे घर का ये खर्चा है, मुझे इतना कमाना होगा, लेकिन क्या उसने कभी ये सोचा कि मुझे अपने आप को वहां पहुंचाना है कि जहां से मैं देश को कुछ दे पाऊं? ये सोच कहां से आएगी, ये प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी? अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, अगर आक्षेप प्रति आक्षेप ही हर चीज में होते नजर आए तो फिर आगे का क्या होगा? ठीक है, राजनीतिक पार्टियां है, चुनाव के समय पे हमें नजर आता है, लेकिन वो चुनाव तक ही सीमित होना चाहिए, उसके बाद नहीं। उसके बाद बात ये होनी चाहिए कि हर राज्य एकजुट हो। हम कैसे अपने हर राज्य की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा सकते हैं देश के विकास के लिए, कैसे हम देश की इकोनॉमी को वहां पहुंचा जाए जहां पर हम भी एक ऐसी सिचुएशन पे हो कि हम किसी को भी लाल आंख दिखा सके बगैर किसी चिंता के कि आगे क्या होगा। मुद्दा बस यहाँ पर यही है कि चलो हमारी तस्वीर तो सादा हो गई, लेकिन अब बारी आ चुकी है कि कहीं ना कहीं अब फिर से एकजुटता दिखे, एक डायरेक्शन मिले, ताकि हमें पता हो कि देश का के लिए विजन क्या है, नहीं कि हमारे राज्य का विजन क्या है, या पार्टी का विजन क्या है, या आम आदमी के खुद के विजन क्या है, या परिवार के लिए विजन क्या है। अब कहीं ना कहीं वो प्रेरणा लानी होगी, और कहीं ना कहीं आपसी भेदभाव भूलकर एकजुट होना होगा, ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा पाए और दूसरे जो भी देश है उससे हम कड़ा मुकाबला कर पाए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।